ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪುನಃ ಸಲ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. फिर एक बार मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके मध्य में मैं आ रहा हूँ और वचन को बांट रहा हूँ। हर एक इतवार के जैसे आप लोग जो है अपने घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी को धन्य करे। और मेरी प्रार्थना, मेरी आशा हमेशा है कि आप सुख रहे, अच्छा रहे, भले रहे, चंगाई रहे। और प्रभु ये कृपा सभी परिवारों को दे रहा है, इसलिए मैं उसके परमेश्वर के प्रति बहुत मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 33ನೆಯ ಭಾಗ 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। भजन संहिता उसका 33 वचन 1 से लेकर 3 वचन तक। Psalms 33 in that portion verses 1 to 3। ನೀತಿವಂತರೇ ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತರು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ। ಕಿನ್ನಾರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, 10 ತಂತಿಗಳ ಸ್ವರಮಂಡಲವನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಕೀರ್ತಿಸಿರಿ। ಆತನ ಘನಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಸ್ವರಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಇಂಪಾಗಿ ಬಾರಿಸಿರಿ। ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡೋಣ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ। ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಅಂಥ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ। యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ। ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ದಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿರುವೆ ದೇವಾ। ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ದಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ। ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ। ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ। యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ। ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು
ನಿನ್ನ ಕರೆದೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕರೆದೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಸಂಧಿ 15ರಿಂದ 22 ವಚನದವರೆಗೆ. Matthew chapter 22 verses 15 to 22. मत्ती का लिखा सुसमाचार उसका 22वां अध्याय वचन 15 से लेकर 22 तक. यहाँ पर कुछ सवालों को यीशु को पूछा गया है, और जो है आज हम देखते हैं जो है टीचर्स डे ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರನು, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕನು ಏನದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. एक अच्छा टीचर जो है, जो मनुष्य के अंदर जो प्रश्न है उन सारे बातों को वो सुलझाता है. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟೀಚರ್, ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜನೀತಿಕ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೆರಗಾದರು, ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಈತನು ಎಂಥ ಒಂದು ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಆತನನ್ನು ರಬ್ಬಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಕರೆದರು. कुछ लोग जो है यीशु को रबी इस प्रकार से वे कहने लगे, और उसको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक जो इंसानों को देखकर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से वो कार्य को करता है, ये बातों को उन्होंने गवाही दिया है, विश्वास किए हैं. और ऐसे सारे बातों को बाइबल में हम देखते हैं. आज जो है लोग कहते हैं कि राधा कृष्णा के नाम से या उसके जन्मदिन पर जो है बर्थडे मनाया गया. सच ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है. दुनिया में जो अलग अलग डेट हम देखते हैं टीचर्स डे के लिए, लेकिन भारत में जो है आज का दिन को जो है टीचर्स डे मनाते हैं. एक स्कूल में एक जो है टीचर अपने बच्चों को पढ़ाती थी, और पढ़ाते समय में अलग अलग रीति के बच्चे हैं. कोई फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से लिखना पढ़ना सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, गलती करते हैं. और कुछ बच्चों को जो है ऐसा बना कर रखते हैं कि बच्चा कभी सीखेगा नहीं. ऐसे जो है हम लोग स्थिति देखते हैं. लेकिन वो टीचर जो है हर एक बच्चों के ऊपर वो अपना ध्यान रखती थी, कमज़ोर के ऊपर भी और बड़े लोगों के ऊपर भी, जो अच्छा पढ़ते हैं उन पर वो ध्यान देकर पढ़ाई करती थी. और अपने क्लास में उसने ये कहा कि बच्चों जो है टीचर के दिन में, आज जो है टीचर का दिन है, आप लोग क्या कीजिए, अपना ड्राइंग बुक निकालिए, और आपको जो लगता है उस अच्छा चित्र को आप टीचर को देने के लिए आप लोग बनाइए कर. तो सभी बच्चे अपने ड्राइंग बुक को निकाले. उन्होंने पेंसिल से पहला ड्राइंग किया, उसके अंदर कलर किया, सब कुछ किया, और सभी लोगों ने जो है टीचर को प्रेजेंट भी उन्होंने किया. और एक लड़का जो है उसने जो है कुछ ड्राइंग ठीक तरह से नहीं किया, लेकिन उसने जो है एक ही ड्राइंग किया, वो था वो केवल पंजा यानी हस्त, हाथ, जो उसने अपना हाथ को रखकर उसने पूरा पेंसिल से ड्राइंग किया और अपना पंजा उस ड्राइंग बुक में उतारा.
टीचर ने सबका देखा कि सब लोग अच्छी तरह से जो है कुछ ग्रेट पिक्चर्स को बनाए हैं और इस लड़के ने केवल हस्त को बनाया। तो सभी लोग जो है उसके और देखिए कैसा पिक्चर बनाया, और टीचर वहाँ पर उस लड़के का जो है किताब को देखकर पूछती है क्यों ये तूने हाथ बनाए कर। वो लड़का कहता है कि टीचर, जब मैं मिस्टेक करता हूँ, मुझे लिखने नहीं आता है, तो आप जो है मेरे हाथ को पकड़कर लिखाते हैं और करेक्शन कराते हैं, और जब मैं रास्ते में आता हूँ स्कूल के लिए तो आप मुझे मेरे हाथ को पकड़कर जो है रोड को क्रॉस कराते हैं। टीचर, जब मैं बहुत ही शोकित होता हूँ, निराश होता हूँ पढ़ाई के मामले में, आप अपने हाथों को लेकर मेरे सर पर जो है सवारते हैं। इसलिए टीचर, मैंने जो है आपका हाथ ये मैंने बनाया है। और कुछ क्षण के लिए जो टीचर बहुत ही क्या हुई, बहुत ही आश्चर्य हो गई। सभी बच्चे अलग अलग पिक्चर्स को बनाए, लेकिन ये लड़का ने मेरा हाथ को बनाया। और उस टीचर को महत्व मालूम पड़ा कि वो छोटे छोटे चीज़ों में उस जो है एकदम जो है कमज़ोर लड़के को जो सिखा रही थी और करा रही थी, तो वो लड़के ने उस बात को जान लिया है। ऐसे हमारे जीवन में हम भी कहते हैं कि सभी के जीवन में कुछ लोगों का हाथ है, हाथ उन्होंने बटाया है कि जीवन को आगे चलाए। प्रियो, उन सारे टीचरों को मैं धन्यवाद देने के लिए आपसे मैं कहता हूँ। और जो है टीचर स्कूल में है, घर में माता पिता है, वो भी एक शिक्षक है। प्रभु उन सभी को आशीष करे। हमारा सबसे बड़ा जो है टीचर, धार्मिक टीचर, जिसने सब कुछ राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह से उसने जो है सिखाया, उसने बताया है। एक बार जो है हम देखते हैं यूहन्ना का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 3 अध्याय में देखते हैं, निकोदेमुस नामक का व्यक्ति यीशु मसीह के पास संध्या काल में आकर ये कहता है कि प्रभु, रब्बी, मैं जानता हूँ कि तू एक अच्छा टीचर है और तू जो है बातें करता है मनुष्य की ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से करता है। और इसलिए उसने ये जाना कि प्रभु, अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, स्वर्ग राज्य में जाना है तो क्या करना चाहिए। तो यीशु ने एक उत्तर दिया, कहा कि तू जो है नए सिरे से तो जन्म लेना है। और निकोदेमुस ने एक स्टंट होकर, यानी कि आश्चर्य हुआ कि कैसे मैं जन्म फिर से लूँगा, नए सिरे से कैसे जन्म लूँगा, क्योंकि तो मैं बूढ़े पे अवस्थे में आया हूँ और कोई फिर से बालक बनकर तो नहीं आ सकते हैं। तो यीशु ने कहा कि तो इतना बड़ा जो है रूलर है, धर्म गुरु है, सब कुछ सिखाता है, इतना चीज़ नहीं जान पाया। और यीशु ने जो है उत्तर दे दिया, जब तक कि मनुष्य जो है आत्मा और पानी से ना जन्म ले, वो जो है स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। आत्मा और पानी परमेश्वर की ओर से है, उसका हृदय जब तक नहीं बदलेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु ने जो है एक धार्मिक रीति से जो बहुत ही छुपा हुआ बात को उसने बताया। इंसान बाहरी रीति से धार्मिक विषयों के बारे में बहुत ही स्टडी करते हैं और परंपरा के बारे में स्टडी करते हैं, यात्रा करते हैं, त्योहार को करते हैं, सब कुछ किए, लेकिन हृदय अगर इंसान का मन अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो वो कैसे परमेश्वर के राज में पहुंच सकते हैं। यीशु ने जो है उस निकोदेमुस को सिखाया कर हम देखते हैं। पहला बात हम देखते हैं, धर्म गुरु को जो है फिर से एक उन्होंने सुलझाया हुआ आंसर उन्होंने दिया। दूसरा हम देखते हैं पॉलिटिकल विषय में यीशु ने जो है आंसर को दिया। वो वचन देखते हैं मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 18 से लेकर 21 वचन। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 18 to 21। यीशु मसीह के पास जो है कुछ लोग जो है प्रश्न करने के लिए आए, क्योंकि उन दिनों में जो धार्मिक लोग थे वो सिंहासन के खिलाफ थे। जो प्रभु के बातों को, प्रभु को कार्य को जो करते थे, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उनके ऊपर हुकूमत चलाए, उनसे कर ले, और वे जो है हमेशा उनके विरोध में जो है घिन को रखते थे, यानी एक नफरत भावना को रखते थे। यीशु के पास ये परीक्षा करने के लिए आए कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, किसको सपोर्ट करना चाहता है, यहूदी धर्म के लोगों के लिए या धार्मिक लीडर्स लोगों के लिए या जो राजनीतिक जो कैसर है उसके लिए। क्योंकि यहाँ क्लैश आगे मैं बताऊंगा क्यों था कर। और उन्होंने पूछा कि कैसर को कर देना उचित है क्या नहीं।
जो टैक्स है वो अधिकारी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और यीशु जानता था इस बात को कि वो जो है उनके लिए नहीं, मुझे परीक्षा करने के लिए वो इस सवाल को पूछे है। यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो मुझे दे दो। वहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि देखो यहाँ पर क्या चित्र है, किसका चित्र है? तो कहते हैं कैसर का। और दूसरे और बोलते हैं कि ये किसका है? परमेश्वर के लिए है। तो यीशु ने ये कह दिया जो कैसर का है वो कैसर का दो, जो परमेश्वर का कार्य के लिए देना है वो परमेश्वर के कार्य के लिए दिया करो। और यीशु ने जो है उसने इस बात को पूर्ण किया। ಆತನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದನು। ಆತನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನ ಹಿಡಿ, ಆ ಮೀನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದು ಬಾ, ಅದು ನನಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ। ಪೇತ್ರನು ಹೋಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೀನವನ್ನು ಹಿಡಿದನು। ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಆತನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, स्वामिಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಆತನು ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟನು। इसका मतलब ये कहना है, यीशु मसीह कह रहा है कि जहाँ तुम जो अधिकारी है उनको तुम सम्मान करो, और जहाँ परमेश्वर का स्थान है वहाँ परमेश्वर के लिए तुम जो है उसको स्थान दो। और क्लैश क्यों था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है लोग जो कैसर के जो अधिकारी लोग थे वो कहते थे कैसर जो है हुकूमत चलाता है और वही जो है एक देव या एक परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है कर लोग कहते थे। इसलिए यहूदी लोग उनका विरोध में करते। लेकिन यीशु मसीह ने जो है विरोध नहीं किया, उस प्रॉब्लम को यीशु ने जो है सॉल्व किया। उसने कहा कि कैसर जो अधिकारी है उसको दिया करो, लेकिन परमेश्वर का जो स्थान है परमेश्वर के लिए अपने हृदय को रखो और उसको भी दिया करो। क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह में जो है जो कुछ भी चलाया जाता है परमेश्वर अपनी योजना से लोगों को रखकर चलाता है। ये जो है पॉलिटिकल हम देखते हैं। और एक जो बात देखते हैं स्वर्गीय बातें के बारे में भी यीशु ने जो है उसने जो है लोगों को जो है फर्क दिलाया और समझाया। सांसारिक बातों को हम देखते हैं, सांसारिक जो है आज देखते हैं शादी ब्याह, बच्चे, परिवार, बहुत लोग जो है इस उलझन में है। शादी के मामले में, एजुकेशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत लोगों को चिंता है, और कुछ लोग को आत्मिक रीति से चिंता ये भी है कि स्वर्ग राज्य में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे या कौन जाएंगे। और कुछ लोगों का गलत शिक्षा भी शिक्षण जो है आ रहा है, बोलते थोड़े लोग जाएंगे थोड़े लोग नहीं जाएंगे, इस प्रकार का शिक्षण जो है लोग दे रहे। यीशु मसीह के पास जो है एक जो है संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से इस सवाल को लेकर आए। फरीसी लोग थे, कुछ लोग यीशु के पास आकर एक सवाल को पूछे। कुछ लोग जो है फरीसी थे, कुछ सदूसी के थे, वे जो है पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान परमेश्वर के राज में जीवित होंगे इसके बारे में एक ग्रुप विश्वास करता था, एक ग्रुप विश्वास नहीं करता था। तो उन्होंने एक सांसारिक रीति से उस प्रश्न को यीशु के सामने रखा। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 9वां अध्याय वचन 1, 2 और 3 आगे हम पढ़ते रहेंगे तो यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है। लूक चैप्टर 20 वर्सेस 27 to 38, लूका का लिखा सुसमाचार जो उसका 20वां अध्याय जो 27 से लेकर 38 वचन, वहाँ पर हम देखेंगे। वो ये सवाल को उन्होंने रखा, क्या अगर एक स्त्री जो है एक पति का जो है पत्नी है, अगर जो उनके जोड़ी रहते समय में बिना संतान के अगर पति मर जाए तो उस स्त्री को जो है दूसरे उसके भाई से शादी करना चाहिए। और उस स्त्री ने दूसरे भाई से शादी किया और वो दूसरा भाई भी बिना संतान के जो है मर गया और फिर से वो विधवा बनी और फिर से उसने जो तीसरे उसके जो पति के भाई है उससे तीसरे से शादी किया। इस प्रकार से जो है बिना संतान के सभी जो है 7 लोग मर गए। कितने लोग? 7 लोग मर गए और वो विधवा बनकर बूढ़ी अवस्था में आई और वो भी मर गई। और प्रश्न यीशु के सामने ये रखा कि पुनरुत्थान जब होगा ये 7 लोग भी जीवित होंगे और ये जो है स्त्री भी जीवित होगी, तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी? बहुत ही कठिन है। यीशु ने उसने उत्तर दिया कि पुनरुत्थान तो है, सभी जीवित होंगे जो पर प्रभु में मरेंगे, लेकिन वहां पर
कोई शादी ब्याह नहीं होगा। जो संसार की बातें हैं वो स्वर्गराज में नहीं होगा। जो संसार की जो संबंध है वो संसार में छूट जाएगा, लेकिन जो स्वर्गराज में है वो स्वर्ग के बातें होते रहेंगे। यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को जो है उसने सुलझा दिया। और एक बात भी हम देखते हैं आत्मिक विषय में, और एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक सवाल यीशु मसीह को शिष्य लोगों ने किया। किसने? ಶಿಷ್ಯ ಲೋಗನೇ ಶಿಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇರುವಂತ ಕುರುಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈತನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನು? ಈತನು ಪಾಪವೋ ಅಥವಾ ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಈತನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸಂಧಿ 1, 2, 3 ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯರು ಸಹ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಸಂಧಿ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಎಷ್ಟೋ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 30 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಬ್ಬಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ 33 ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ರಾಂಗ್ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಆತನು ಒಬ್ಬತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು, ಸಂಸಾರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, 33 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಹಿಂಸೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. शिलबे के आके आतनों खोंद बिट्टरू. उसको जो है यीशु को जो है 33 साल के बाद उसका जो है जीवन कष्टमय में जीवन में गुजर गया, और उसके बाद में उसको जो है क्रूस पर डालकर मार दिया गया. लेकिन आज भी अगर जीवन का बहुत सारे जो कठिन बातें हैं जो इसको समझ में नहीं आता है, फिलोसफी हो, साइकोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल, उन सारी बातों में जो इंसान आज सवालों को ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, शिक्षा जो है स्पेशलाइज बने हुए हैं, लेकिन जब जीवन का बात आता है, खुद के बारे में जब आता है, आत्मिक के जीवन के बारे में, खुद का आत्मा के बारे में आता है, यीशु मसीह जो शिक्षा उन्होंने दिया है, बाइबल वो जो है हमको सिखाता है. और बाइबल के नाम से आज कितने हजारों लाखों लोग जो है शिक्षक बने हुए, प्रोफेसर बने हुए हैं. इतने लोग जो है किताबें यीशु के बातों पर लिखी गए हैं, परमेश्वर के बातों पे लिखी गए हैं. संसार में जो है इस किताब को छोड़कर किसी के ऊपर इतना किताब, लाइब्रेरी, बड़े बड़े जो है ग्रंथ नहीं लिखे गए. इसलिए यीशु मसीह इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर. एक बहुत ही अच्छा एक गुरु है हमारे लिए. भले आप कष्ट में हो, दुख में हो, सुख में हो, वो परमेश्वर आपको उद्धार देता रहेगा. यीशु पे भरोसा रखिए. जीवन के हर एक मार्ग पर, हर एक मोड़ पर वो आपके साथ में रहकर आपको संभालेगा. परमेश्वर जो है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है. कठिनाई के जीवन में बहुत से लोग चले, अनेक रीति से उनको निंदा आ गए. पॉलिटिकल भी कई लोग परेशानी को झेलते हैं, कई लोग सामाजिक रीति से परेशानी को झेलते हैं. आत्मिक धार्मिक रीति से वे जानते नहीं, लेकिन दबाव में है, प्रेशर में आज लोग. यीशु मसीह उन सारे जो है उनके आत्मिक जो अंदरूनी बातों के लिए जो है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है. उसको मानिए और चलिए, जीवन में आपको सुख मिलेगा, आशीष मिलेगा. आओ हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने स्वरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे. इस ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. ಯಾರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಚೀತದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಈ ಕಷ್ಟವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಈ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಆಗಿದ್ದಿ, ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ದೇವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲಾರದಂತೆ, ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೆ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘನಮಾನ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಅನೇಕರು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಜನರು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪುನಃ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು 10 ಆಗಲಿ 10:30 ಗಂಟೆಗಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆನಂದ್ ನಗ್ಲಪುರ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ KP ಸಾಮ್ಯಲ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಶಿವಮ್ಮಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.